So everybody have written this question which says that an aeroplane using 20 ton of refrigeration bootstrap air refrigeration system which has atmospheric conditions of zero point 0.9 bar and 15 degrees Celsius. The ram air pressure after isentropic compression is 1.1 bar. So it is said that the atmospheric pressure is zero point 0.9 bar, the atmospheric temperature is 15 degrees Celsius, the ram air pressure after isentropic compression is 1.1 bar. So when the air enters the aircraft, the ram air is at 1.1 bar. The ram air is at 1.1 bar, and it is said that the compression is isentropic. तो जो आपका process 1 to 2 है, वो 1 to 2 ही रहेगा, कोई 2 dash नहीं रहेगा, because यहाँ पर compression कैसा है बेटा? Isentropic. Main compressor exit pressure is 3.5 bar, and the exit compressor of secondary compressor is 4.5 bar. The cabin is supposed to be maintained at the cabin is supposed to be maintained at the cabin is supposed to be maintained at 1 bar and 25 degrees Celsius. Isentropic efficiency of each compressor is 85%. It is given that the efficiency of the compressors are 85%, and the cooling turbine efficiency is 90%. The effectiveness of both heat exchanger is 60%. Find mass flow rate of air passing through the cabin, find the power required, find the COP of the system, and assume specific heat at constant pressure as 1.01 kilojoule per kg Kelvin. So, was the screen visible to you now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, my dear friend. Now, I will ask you all to recall what we have studied yesterday. So yesterday we have studied all the 6 types of refrigeration system. Am I correct? And Yes, also sir. we studied the TS diagram. So in a bootstrap refrigeration system, we have discussed that exist 2 heat exchangers, 2 compressors. In bootstrap air refrigeration system, there exist 2 heat exchangers and 2 compressors. Is that clear, my dear friend? So now I ask you all to draw the TS diagram for this question. So let's draw the TS diagram for this question. So we are going to draw the TS diagram for this question. How to draw the TS diagram for this question? So we are supposed to draw the maximum pressure. We are supposed to draw the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is 0.9 bar. The cabin pressure is given as 1 bar. The ram air pressure is 1.1 bar. The main compressor pressure is 3.5 bar. आप लोगों को रेड लाइंस दिख रही है ना? क्वेश्चन के ऊपर ही है सर. हाँ, क्वेश्चन के ऊपर ही जानबूझ के ड्रॉ करो क्योंकि मैं ऑलरेडी बुक का लिया हूँ. ठीक है? Now we are supposed to draw the ramming. So process 1 to 2. Process 1 to 2 starts from 1, that is from atmospheric. Ambient से start किया और RAM तक लेके गया. RAM ideal है because it was isentropic compression in the RAM. The RAM air pressure after isentropic compressor is 1.1 bar. Is it clear, my dear friends? Yes, sir. वो कलर चेंज करिएगा क्या सर आप? हाँ, कौन सा लो बोलो? कौन सा बताओ तुमको? कोई भी डार्क कलर दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? 4 प्रेशर लाइंस दी, अरे हाँ 5 प्रेशर लाइन दी. अब 2 to 3 इज मेन कंप्रेशन. 2 to 3 is main compression. So I am drawing तो ये आपका रैम है, प्रेशर है. ठीक है, 2 to 3 आपका मेन कंप्रेशन में कंप्रेसर हो रहा है. तो प्रोसेस 2 to 3 इज मेन कंप्रेशन का कंप्रेशन. ठीक है, इसने बोला है कि हर कंप्रेसर की एफिशिएंसी 85% है. हर कंप्रेसर की एफिशिएंसी 85%. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक 3' भी ड्रॉ करना है. इज इट क्लियर? तो 3' to 4 फर्स्ट हीट एक्सचेंजर, 3' to 4 फर्स्ट हीट एक्सचेंजर. फिर 4 के बाद क्या होगा, वापस सेकेंडरी कंप्रेशन में कंप्रेशन होगा. 4 to 5 इज सेकेंडरी कंप्रेशन में कंप्रेसर. 4 to 5', क्यों? बिकॉज हर कंप्रेसर की एफिशिएंसी दी गई है. 5' to 6 हमारा
next heat exchanger में heat exchange होगा, and then 6 to 7 there will be expansion in the turbine. Since again there is a turbine efficiency given, so 6 to 7 dash का इस्तेमाल किया जाएगा, और 7 dash से 8 हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, 8 हमारा कैबिन है जो 1 बार पर है, और उसका टेम्परेचर हमें 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने खाली आपको बताया प्रोसेस। ये आपके सामने बुक का डायग्राम एज इट इज, ये आपके सामने बुक का डायग्राम एज इट इज। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. So my dear friend, in this question it is given that the RAM air is isentropic। तो ये जो आपकी ये जो पार्ट है ये वो नहीं रहेगी, मैं इसको व्हाइट कलर कर दिया, ठीक है? Is it clear? So 1 to 2 isentropic compression, 2 to 3 compression in the main compressor, 3 to 4 first heat exchanger, 4 to 5 secondary compressor, 5 to 6 second heat exchanger, and 6 to 7 is cooling turbine, 7 to 8 is the refrigeration effect, where the cabin is maintained at a temperature of 25 degrees Celsius. The cabin is maintained at a temperature of 25 degrees Celsius at 1 bar. The cabin pressure is given as 1 bar and 25 degrees Celsius. The cabin pressure is given as 1 bar and 25 degrees Celsius. Is it clear, my dear friends? Yes, sir. Yes, sir. Now, after reading the question, we have discussed the TS diagram twice। मुझे मालूम है ये जो इस पे है वो आपको दिख नहीं रहा, बस आपको खाली पता चलना चाहिए था कि हमें कैसे ड्रॉ करना है। तो हम कैसे ड्रॉ करने वाले बेटा, हम एम्बियंट से स्टार्ट करने वाले हैं। The ambient condition is given as 0.9 bar and 50 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हमने एम्बियंट की प्रेशर लाइन बनाई, कैबिन की प्रेशर लाइन बनाई, रैम प्रेशर की प्रेशर लाइन बनाई, कंप्रेसर की प्रेशर लाइन बनाई, सेकेंडरी कंप्रेसर की प्रेशर लाइन बनाई। वो बनाने के बाद we have taken process 1 to 2 that is isentropic compression। We have taken process 1 to 2 that is isentropic compression। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ये यहाँ से यहाँ बना देता हूँ, ये अपना 1 है, ठीक है? इस डायग्राम को अगर हमें करेक्ट करना है तो ये हमारा सही रहेगा, हमारा ये जो है ये नहीं है। क्लियर है बेटा? क्लियर है दोस्त? Yes, sir. सर मतलब 1 2 3 डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ही जाएगा ना सर? मतलब 1 to 2 is the isentropic compression। Yes, yes. 1 to 2 is isentropic compression। 1 to 2 is isentropic compression। 2 to 3 is compression in the main compressor। Since it is 85% efficient, so there will be a 3 dash। 3 dash to 4 होगा heat exchange। 4 to 5 secondary compressor। Since again it is not isentropic, it has 85% efficiency, so it will be 5 dash। 5 dash to 6 second heat exchanger। 6 to 7, ठीक है? Is it clear? So is the diagram clear to everybody? Yes, All sir. my students sitting in this lecture are aware of bootstrap air refrigeration system। All my students sitting in this lecture are aware of bootstrap air refrigeration system। They know how to solve the numericals। Am I correct? So this is bootstrap refrigeration system। bootstrap refrigeration का कंस्ट्रक्शन हमें पता है। एक बार हमें कंस्ट्रक्शन पता है तो हमें उसका टीएस डायग्राम पता है। एक बार मुझे टीएस डायग्राम पता हो गया तो हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल? हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल? बाय द हेल्प ऑफ थर्मोडायनामिक रिलेशंस एंड हीट ट्रांसफर्स का नॉलेज। So my dear friend, in this question it is asked to find, in this question it is asked to find mass flow rate of air passing through the cabin। It is asked to find mass flow rate of air passing through the cabin, find the power required and also the COP of the system। So before we do all these things, we are supposed to do some thermodynamic analysis and heat exchanger knowledge application। So it is given that the isentropic efficiency of each compressor is 85%। The isentropic efficiency of each compressor is 85%। The efficiency of the cooling turbine is 90%। The heat exchanger effectiveness is 60%। Is it clear? So my dear friend, the main compressor efficiency is how much? The main compressor efficiency is 85. 85%. 85%. That is, it is 0.85. The secondary compressor efficiency is 85%. 85%. 85%. The 0.8. turbine efficiency is 90%. 90%. Is it clear? Now, how to solve the numerical? How to solve the numerical? अभी मैंने मेन कंप्रेसर एफिशिएंसी का फार्मूला आपके सामने लिख दिया है। आपको याद रखना है
कंप्रेसर की एफिशिएंसी और टरबाइन की एफिशिएंसी हो, इट इज ऑलवेज बिग वैल्यू अपॉन स्मॉल वैल्यू, इट इज ऑलवेज बिग वैल्यू अपॉन स्मॉल वैल्यू, बिग अपॉन लार्ज, ठीक है। बिग टेम्परेचर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इट इज ऑलवेज, अरे सॉरी, स्मॉल अपॉन बिग, इज दैट ओके? मैंने बिग अपॉन लार्ज लिख दिया, वही मतलब क्या लिख रहा हूं, ठीक है। सो efficiency of the turbine or compressor, the efficiency of the turbine or compressor is small upon big, small upon big, small temperature difference divided by big temperature difference. Is that clear? Now RAM कैसा है बेटा? RAM isentropic था, RAM ऐसा बेटा, RAM कैसा है? Isentropic So we compressor. will use this relation T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 by gamma. उससे हमें मिल जाएगा T2, हमें T1 दिया है, हमें एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर दिया है ना बेटा? अगर आपको याद है तो एटमॉस्फेरिक 15 टेम्परेचर degree given as Celsius. 15 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज गिवन एज 15 डिग्री सेल्सियस। अपन 15 डिग्री सेल्सियस को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें T2 मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा? क्या मिलेगा? T2 मिलेगा सर। दिस रिलेशनशिप विल फर्स्ट गिव अस T2। एक बार मुझे T2 मिल गया, एक बार मुझे T2 मिल गया, क्या मिल गया बेटा? T2. T2 के बाद मुझे T3 निकालना है। T3 के लिए भी यही फॉर्मूला है, T3 के लिए भी यही फॉर्मूला है, T3 by T2 is equal to P3 by P2 raised to gamma minus 1 by gamma। हमें मेन कंप्रेशन का प्रेशर दिया हुआ है, हमें रैम का प्रेशर दिया हुआ है, P3 by P2 मुझे पता है, हमें T2 मिल गया है, बोलो मिल गया ना? Yes, sir. जैसे ही T3 मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप, इस तरह के थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप मुझे जब T3 मिलेगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? आई विल यूज मेन कंप्रेसर एफिशिएंसी व्हिच आई हैव सेड इट इज ऑलवेज स्मॉल अपॉन बिग, इट इज ऑलवेज स्मॉल अपॉन बिग। तो T3 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T3 डैश माइनस T2 डैश, है ना बेटा? ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है दैट इज स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू दिस पिंक लाइन, यस और नो? भाई कोई रिप्लाई करो यार। हाँ, ब्लू इज ग्रेटर देन पिंक और पिंक इज ग्रेटर देन ब्लू। Pink is greater than blue. Pink greater. हाँ, so it is greater. pink divided by blue. It is pink T3 minus T2 divided by T3 dash minus T2 dash. Is that clear? सर T2 डैश नहीं रहेगा ना? बेटा हाँ, अभी अपन ने वो डिस्कस कर लिया है कि हमारा असली डायग्राम ये है, लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से वो T2 डैश है। क्लियर है? Yes sir. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको वापस अगर इसको 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, क्लियर है नाउ? इज इट क्लियर नाउ? Yes sir. 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन द रैम। पहले T2 मिलेगा, T2 से T3 मिलेगा और T3 से T3 डैश मिलेगा विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर एफिशिएंसी। इज दैट क्लियर? क्लियर है दोस्तों? सभी को समझ में आ रहा है? Yes sir. जो रिप्लाई कर रहा है लड़का वो बताएगा T2 कैसे मिला बेटा? T2 मिला हमें इस थर्मोडायनेमिक रिलेशन T2 by T2 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 by gamma। gamma. ठीक है, फिर T3 कैसे मिला बेटा? T3 by T2 is equal to P3 by P2. Main compressor के फॉर्म। हाँ यही। फिर बात T3 डैश कैसे मिला? T3 डैश मिला इस फॉर्मूला से, है ना बेटा? T3 डैश मिला इस फॉर्मूला से। क्लियर है? मेन कंप्रेसर एफिशिएंसी इज 85% which is small upon big, which is small upon big। क्लियर है? Is that okay my dear friend? Yes sir. My friends are not replying, Yes, and sir. it is a time of at most tragedy. So 49 people are again back today. So Sarvesh Juvekar, am I audible to you? Yes sir. Sarvesh, we got T2, we got T3, we got T3 dash। यहाँ तक आपको समझ में आया बेटा? Yes sir. Now Sarvesh, you can see that the system which is at over here 3 dash
will come to 4 while passing through a heat exchanger. That heat exchanger is exchanging heat with the ram air. The ram air is maintained at which temperature? T2. Is that clear? The ram air is maintained at which temperature? T2. T2. So it is given in the question that the effectiveness of heat exchanger is 60%. The effectiveness of the heat exchanger is 60%. And what is the formula of effectiveness of heat exchanger? Effectiveness of a heat exchanger is actual heat transfer divided by the maximum possible heat transfer. Effectiveness of heat exchanger is actual temperature drop divided by the maximum possible temperature drop. Is that clear? What is effectiveness? Effectiveness of a heat exchanger is actual heat transfer divided by the maximum possible heat transfer. तो हमें हीट ट्रांसफर किसका करना है? T3 डैश का किसके साथ? T2 के साथ. तो T3 डैश का टेम्परेचर कम होकर T4 हो गया. कम कितना हुआ? T3 डैश से T4 हुआ, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता था? T3 डैश से T2 हो सकता था. क्लियर है? T3 डैश से T3 डैश से T4 हुआ, लेकिन कितना हो सकता है? T3 डैश से T2 हो सकता है, बिकॉज हीट एक्सचेंजर में रैम एयर से हीट ट्रांसफर किया जा रहा है. क्लियर है? Yes, So sir. using the formula Sir. of effectiveness of heat exchanger. Yes. So heat exchanger effectiveness is equal to actual heat transfer upon. Maximum possible heat drop. Okay, sir. ठीक है? So we got effectiveness of heat exchanger का value as 0.6. So substituting this value as 0.6, हमें T3 dash पता है बोलो yes. We know T3 dash. Yes, sir. We know Yes, T2. sir. हमें T2 पता है. Yes, मुझे sir. इस पूरे फॉर्मूला Yes, sir. में सिर्फ T4 पता नहीं है, तो मुझे इससे T4 का वैल्यू मिल जाएगा. तो मैं आगे यहाँ T4 लिख दूं दोस्तों, अगर आपका परमिशन हो तो. मुझे यहाँ T4 भी मिल गया. हाँ सर लिख दो. ठीक है, एक बार T4 मिल गया, मुझे सेकेंडरी कंप्रेशन का प्रेशर पता है, मेन कंप्रेसर का प्रेशर पता है, तो वापस में लिखूंगा T4 by T5 is equal to P4 by P5 raised to gamma minus 1 by gamma. कोई दिक्कत है किसी को? No, अरे sir. तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा भाई? T5 by T4 is equal to P5 by P4 raised to gamma minus 1 by gamma. उससे हमें क्या मिलेगा दोस्तों? उससे हमें मिलेगा T5. T5. वेरी नाइस. केवल T5 मिल गया तो वापस हम जाएंगे सेकेंडरी कंप्रेसर का एफिशिएंसी का इस्तेमाल करेंगे. तो सेकेंडरी कंप्रेसर का एफिशिएंसी इज 85%. The secondary compressor efficiency is 85%. So the efficiency of any compressor is big upon small. So we know that, small upon big. We know that blue is small, pink is big. So blue divided by pink. Blue divided by, यहाँ पर डैश गलती से आया है, यहाँ पर क्या गलती है? क्लियर है दोस्तों? अब इससे क्या मिल जाएगा बेटा? इस फॉर्मूला से हमें सेकेंडरी कंप्रेसर की एफिशिएंसी पता है, हमें T5 पता है, T4 पता है, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा गधों? T5 dash. T5 dash. Once we get T5 dash, we are going to the second heat exchanger. Second heat exchanger in the bootstrap air refrigeration system. ये किससे हीट एक्सचेंज करता है बेटा? सेकेंड हीट एक्सचेंजर सर ये भी रैम एयर से करता है, ये भी रैम एयर से Second heat करता है. exchanger से sir. सर RAM and हाँ हाँ सर बोल T5 बेटा, सर T5 ये फॉर्मूले से आएगा ना, T5 by T4 is equals to P5 by P4 raised to gamma minus 1. यस यस ओके सर. ठीक है. पहले T5 निकाला फिर T5 डैश निकाला, सेकेंडरी कंप्रेसर एफिशिएंसी. क्लियर है सर? आगे बढ़े. हाँ सर, हाँ समझ गए. सेकेंड हीट एक्सचेंजर किससे हीट एक्सचेंज कर रहा है दोस्तों? रैम एयर से. टाइम है तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कितना हो सकता है? T5 डैश से T2 हो सकता है. मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो सकता है, मैक्सिमम हीट ड्रॉप हो सकता है T5 डैश से T2, लेकिन ऐसा होता नहीं. होता क्या है? T5 डैश से T6 होता है. सो T5 dash minus T6 divided by T5 dash minus T2 is the effectiveness of second heat exchanger. ठीक है, हमें इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर पता है 60%, हमें T5 डैश पता है, हमें T2 पता है, तो उससे हमें मिल जाएगा T6. बोलो यस सर. यस सर. तो हमें मिला T2, T3, T3 डैश, T4, T5, T5 डैश, T6. अब T6 मिलने के बाद हम वापस क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे कि 6 के बाद कहाँ जाता है बेटा? आफ्टर लीविंग द सेकेंड हीट एक्सचेंजर द एयर गोस इन द
cooling turbine. The air goes in the cooling turbine. That valve, that is the expansion, and it is said that the turbine efficiency is 90%. So again, I will use thermodynamic relation T6 by T7 is equal to P6 by P7 raised to gamma minus 1 by gamma. किसी को कोई डाउट? नहीं सर। डाउट? तो अब मुझे क्या सर मिलेगा आपका बेटा? वॉइस क्रैक हो रहा है सर बीच में सर, शायद से मेरा इंटरनेट इश्यू है या फिर आपका है, हो रहा आपका? है। सर दवे क्रैक भाई हो रहा है। आपका है। मेरा है? नहीं नहीं सर, दवे जी का है। हाँ ठीक है, दवे जी का है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो T6 by T7 is equal to P6 by P7 raised to gamma minus 1. इससे हमें बेटा क्या मिल जाएगा? T7 मिल जाएगा। Once we get the T7 मिल जाएगा। क्लियर है ना इस फॉर्मूले से? हाँ सर हाँ। हाँ सर। T7 मिलने के बाद हम क्या करेंगे? हमें बोला है कि टर्बाइन इज नॉट आइसेंट्रोपिक, इट इज हैविंग 90% एफिशिएंसी, सो वी आर यूजिंग टर्बाइन एफिशिएंसी। हम टर्बाइन एफिशिएंसी का इस्तेमाल करेंगे विच इज गिवन एज 90%। हमें T6 पता है, T7 पता है, तो हमें मिल जाएगा T7 डैश। ये जो T7 डैश है ये क्या है? दिस इज द एयर, दिस इज द ड्राई एयर रेटेड टेम्परेचर ऑफ बूटस्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो अपन ने कल लास्ट में पढ़ा था। तो अपन रेटेड निकाला, दिस इज द ड्राई एयर लीविंग द कूलिंग टर्बाइन एंड गोइंग टू द कैबिन। दिस 7 dash goes to the cabin and does the required refrigeration effect. Is it clear, my dear friends? मेरे बच्चे रिप्लाई करो। हाँ सर हो गया, क्लियर हो गया। क्या होगा क्लियर? सर पूरा सम क्लियर हो गया। पूरा सम क्लियर हो गया। We got T7 dash. This T7 dash goes into the cabin to maintain the required temperature of T8. This T7 dash goes into the cabin to maintain the required temperature of T8, and this is our air conditioning, this is our air cooling system. Is it clear, my dear friend? Once you know all the thermodynamic temperature, हमें thermodynamic pressure सारे पता थे। Once you know all the thermodynamic temperature, you can solve this numerical and get the required answer. So let's proceed to the next step. What is required, my dear friend? We are supposed to find mass flow rate of air passing through the cabin. Mass flow rate of air passing through the cabin. It is said that the aeroplane is 20 ton of refrigeration. Yeah, very good, Sulaiman. Mass flow rate of, पहला क्या है बेटा? Find the mass flow rate of air passing through the cabin. Find out the mass flow rate of air. अरे कोई रिप्लाई करो रे। सर कैन यू रिपीट? Mass flow rate of air passing through the cabin. पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द मास फ्लो रेट ऑफ एयर पासिंग थ्रू द कैबिन। तो हम लोग क्या करेंगे? मास फ्लो रेट निकालने के लिए हमारे सिस्टम की कैपेसिटी का पता करेंगे। हमारी सिस्टम की कैपेसिटी है 20 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। सिस्टम की कैपेसिटी कितना है बेटा? 20 ton of refrigeration. It is given in the question. 20 ton is nothing but 20 into 3.5. 20 into 3.51 होता है ना दोस्तों? Which is Yes, sir. 20 into 70. 3.5 is 70 kilowatts. So the system capacity is 70 kilowatt. The system's capacity is 70 kilowatt, which is nothing but mCp delta T. Heat transfer, heat flow rate, heat transfer. Yes, sir. किलोजूल पर सेकंड इज mCp डेल्टा T। हमें Cp दिया है क्वेश्चन में 1.01 किलोजूल पर केजी केल्विन। हमें पिछले इसमें T7 डैश आ गया। इस पिछले पेज में अपने को T7 डैश मिला है ना दोस्तों? लास्ट में अपन ने क्या निकाला? T7 डैश निकाला। ठीक है, एक बार मुझे T7 डैश पता है, मुझे मालूम है कि कैबिन को 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना है। 25 प्लस 273 is 298। तो जब मैं यहाँ पर 70 सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ पर 1.01 सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ 298 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, यहाँ T7 डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा m डैश। पहला क्वेश्चन हो गया। Yes, sir. कोई फॉर्मूला याद Yes, sir. करना है क्या पूरे इसमें? नहीं सर। हमें थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए। अगर मुझे थर्मोडायनेमिक्स आती है तो मेरे लिए RAC एक खिलौना है। हम एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग के और अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज कर रहे हैं। हमें यहाँ पे कुछ याद करना नहीं है, हमें सिर्फ सब पता होना चाहिए। जैसे हमको पता है कि हमें सुबह खाना खाना है, उसका नाम ब्रेकफास्ट है, शाम वाले का डिनर है, बीच वाले का लंच है ना बेटा? वैसे ही पता होना चाहिए कि हीट एक्सचेंजर क्या कर रहा है, टरबाइन क्या कर रहा है, कंप्रेसर क्या कर रहा है। ठीक है, खाने में अंडा पाव खाने का सुबह और शाम को
चिकन तंदूरी। इज इट क्लियर? सर वेजिटेरियन है सर। वेजिटेरियन लोग घास फूस खाओ सुबह शाम दिन रात। आलू खाएंगे सर, आलू और पनीर। चलो चलो। So one thing is very clear. We are not supposed to remember any formula. We are supposed to remember the thermodynamics. Once we know thermodynamics, we can find anything. तो पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया। पहला क्वेश्चन हो गया मास फ्लो रेट ऑफ एयर पासिंग थ्रू द कैबिन। मिल गया मास फ्लो रेट। यस सर। यही मास फ्लो रेट को अगर आप Cp और T3 डैश माइनस T2 डैश से मल्टीप्लाई कर दो तो पावर मिल जाएगा। पावर सप्लाई करते हैं हम मेन कंप्रेसर में, है ना? यस सर। अब मेन Yes, कंप्रेसर sir. में पावर सप्लाई करते हैं तो मेन कंप्रेसर में प्रोसेस होता है 2 3। तो अगर मेरे पास T3 है, T2 है, Cp है, m डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, मिल गया। क्या मिला बेटा? पावर। पावर। क्या मिला? पावर। पावर। क्लियर है दोस्तों? यस सर। एक बार पावर मिल गया। Yes, sir. लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सीओपी ऑफ द सिस्टम। सीओपी ढूंढना है। अरे 1 को 2 से डिवाइड कर दो, सीओपी आ जाएगा। हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय पावर, हो गया सीओपी। क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों? यस सर। यस सर। चलो ना, बहुत मजा आया पढ़ा के। ये मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। सर हम लोग T8 कैसे फाइंड करेंगे अगर फाइंड हाँ? करना रहेगा तो? T8 अगर हम लोग को बोला है फाइंड करने अरे को तो T8 दादा, ये दिले कॅबिन इज मेंटेन एट 25 डिग्री सेल्सियस अँड Okay, okay, okay. कशाला हाँ, एवढा हाँ. त्रास घेताय तुम्ही? हो समझलं सर। जबरदस्ती क्वेश्चन पूछता है लड़का, पागल। हाँ सर। ठीक है। नाउ everybody will do one thing. They are going to copy this diagram. कौन सा डायग्राम? ये वाला। प्लीज कॉपी दिस डायग्राम। क्वेश्चन कॉपी किया है? यस सर। क्वेश्चन नहीं कॉपी किया तो उसको जगह छोड़ दे। ये डायग्राम कॉपी कर। कितने मिनट में करेंगे? सर 5 मिनट में। डायग्राम कॉपी करने के बाद ये सारी चीजें आपको करनी है। एक काम करते हैं, 9:48 हो रहा है ना? यस सर। कैलकुलेटर लिया सबने हाथ में? यस सर। हाँ सर लिया सर। एक मिनट बंद करना पड़ेगा। मैं दिख रहा हूँ सबको? यस सर। किसने कैलकुलेटर लिया? जरा कैमरा चालू करो तो। Everyone solve this. First, second, करो। बताओ कि check box में first question. Yes, very nice. बंद करो। हाँ। Second question is the which type of question? A का लिखोगे। A is the kinetic. चलो, do one thing. या फिर B is the Do one thing. constraint, C is the constraint motion, ये लिखोगे। हाँ। B में क्या आ रहा है? E में क्या आ रहा है? Everyone. फोटो ले लो सबको। क्वेश्चन दिख रहा है? And then solve करो। यस सर। ये डायग्राम कॉपी करो। कॉपी करो। 1 मिनट में सॉल्व होते हैं। 5 मिनट में 5 सॉल्व हो सकता है। You can solve in 5 minutes. Within 5 minutes you can solve all 5. अगर ये जाएगा तो मुझे बताना, इनकेस अगर जाता है तो। मुझे फोटो सबका। Yes, everyone solve. आपको आएगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। सर यहाँ पे वो चेंजेस करने हैं ना, वो जो 1 आगे हाँ, रहेगा, बेटा, 1 हाँ। से 2 वो सर। हाँ, ऐसे नहीं बता। फर्स्ट एक कौन सा चेंज? एक बार जो बता दिया उसको रिपीट नहीं करने का बेटा, क्वेश्चन एक गलती को, है ना?
A is the which type of chain? 3 is unconstrained chain हो रहा है. A भी हो गया क्या? A first one is the frame, second is the kinetic chain, 3 is the unconstrained chain. देख लेते हैं. A, B, C, D question है. Fourth को fix भी करो. First one is the left hand, so this is कॉपी हो गया बेटा डायग्राम? okay, very good. First one is the left hand. Second one is the left hand side. कर रहे सर. Right hand side also. जिसने कैलकुलेटर लिया बेटा वो एक काम करो. Second one is the constant kinetic chain. Very good. Third one is the unconstrained chain. एक मिनट कर लो, कॉपी कर लो, कोई बात नहीं. तीनों एकदम very good solve किए. Now fourth one solve करो. Fourth सबसे difficult दिख रहा है. Okay. This one. इसका नहीं हुआ, ये तीनों भी करवा. पता चल गया. First one is the left chain. Second one is the kinetic chain, constrained kinetic chain, and third one is the unconstrained kinetic chain. Okay. Because first one is the left hand side greater than right hand side, that's why it's a log chain, but not a kinetic chain. In the second question, left hand side equal to right hand side, so that's why this is the constrained kinetic chain. And third one is the left hand side less than right hand side, that's why it's a unconstrained chain. Unconstrained chain is also not a kinetic chain. Only equal over left hand side equal to right hand side, that's this is the constrained kinetic chain. Now it will solve the fourth question. If kinetic chain बोला 5%. फोर वाला बोल सकते हैं, फोर किसी ने नहीं बोला. फोर. Fourth one. How many links are here? It's stated as a super of one calculator. This is the one. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Number of links. कॉपीड? यस सर. चलो. So my dear friends, देखोगे आपने एक बार सॉल्व करेंगे आप. How many number of links in this question? so after copying that, P2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 by gamma. इससे हमें T2 निकालना है. T2 कितना है बेटा? Sir, 304.994. हाँ? 304. T2 आ गया? हाँ सर. अच्छा, T2 is 304. 0.99 कैलोरी. Number of links 8 है. T2 is 304 point The fourth question. Number of links is 8. 0.99 Kelvin. Take it as 305 Kelvin. Clear है? Yes sir. अब T3 by T2 is equal to P3 by P2 निकाल के T3 निकालिए. 424.53. 424.53 Kelvin. After that, क्लियर दोस्तों, सब बच्चों को क्लियर है कैसे आया T2 और T3? उसके बाद हमें कंप्रेसर की एफिशिएंसी के हेल्प से T3 डैश निकालना है. कंप्रेसर का एफिशिएंसी है 0.85, T3 है हमारे पास, T2 है, तो T3 डैश मिलेगा. कितना आया दोस्तों? 445.62. सर मुझे हाँ बोलो. 445 सर, वही मतलब T3 डैश. 445.62 Kelvin. ठीक है. Let's move to the next page. Now, after coming out from the first compressor, it comes out at a temperature of T3 dash. It comes out at a temperature of T3 dash and it passes through the first heat exchanger. हमारे डायग्राम के हिसाब से T3 dash चेंज होगा, T4 तक जाएगा. So T3 dash minus T4 upon T3 dash minus T2 is the effectiveness of first heat exchanger, which is given as कितना है 60% ना. उसके हेल्प से हमें T4 मिलेगा. कितना है T4? 361.244. 361.24 Kelvin. ठीक है. सेकंड कंप्रेसर में T5 by T4 is equal to P5 by P4, इससे हमें T5 मिलेगा. कितना मिला? 388.136. 388.13 Kelvin. ठीक है. Now second heat exchanger will again do the heat exchange with the ram air. तो T5 dash निकाला क्या अपन ने? नहीं. T5 dash निकाल देते हैं.
सो T5 डैश कैसे निकलेगा? एफिशिएंसी ऑफ द सेकेंड कंप्रेसर। सेकेंड कंप्रेसर की एफिशिएंसी क्या है भाई? न्यू कंप्रेसर इज 0.85 which is T5 minus T4 upon T5 dash minus T4। क्लियर है? इससे हमें T5 डैश मिलेगा। कितना है दोस्तों T5 डैश? निकालो बच्चों। से कर रहे हैं। हाँ। So 1, 2, 3, 3 plus 2. यार 388 पॉइंट उतना ही आया क्या? Two binary and one ternary, so 4. Number of joint is 4. यहाँ पर देख लो। सर ये T3 सर ये T3 इससे आएगा ना T3 by T2 is equals to P3 by P2 raised to सर बराबर। मुझे 392 आया सर, 392.88 सर जो T5 dash 392.88 88 Kelvin। ठीक है? Once we got T5 dash, we'll go to the second heat exchanger। सर बेटा रुक जाओ, हम लोग आगे बढ़ गए हैं, आपका डाउट वाला क्लियर करते हैं। ठीक है? Now second heat exchanger will do the heat exchange with the RAM है। So T5 dash का T6 तक heat exchange होता है। T5 dash minus T6 upon T5 dash minus T2, इससे T6 आएगा। आप लोग T6 निकालो और जो डाउट पूछा तो डाउट पूछेगा। पूछो बेटा, डाउट कौन पूछ रहा था? सर वो जो P3 by P2 का रेशियो है उसमें सर P2 थोड़ी दिया है सर, P2 डैश दिया है ना 1.1 बार। बेटा कहाँ से पढ़ के आए हो? ये जो है ये पूरा सेम ही प्रेशर है। सर वो P2 और P2 डैश सेम प्रेशर थोड़ी है सर। सेम ही है, यहाँ पर सिर्फ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ है। मैंने पढ़ाते हुए बताया, मैंने बोला मैंने बुक का डायग्राम लिया है। पढ़ाते हुए मैंने बताया कितनी बार मैंने 1 to 2 ही लाइन बनाई थी, बाकी सब मैंने रब किया था, आपको याद होगा। हाँ व्हाइट कलर का बनाया था। हाँ बस। तो सर मतलब P2 की जगह पे 1.1 बार लेना है। ओके सर। T6 आया 340.14 केल्विन। कितना आया? 340.14 340.14 केल्विन। 340.14 ओके। उसके बाद Yes, कूलिंग sir. टरबाइन T7 by T6 इक्वल टू P7 by P6 रेज़ टू गामा -1। इससे क्या आएगा? T7 का वैल्यू निकालिए दोस्तों। ये जो वैल्यूज आ रही है सबको, जितने 4 कैलकुलेटर्स दिखे सबको आ रही है ना? इसी रेंज में आ रही है ना? कि बाकी लोग आराम कर रहे हैं? हाँ सर, नहीं सर आ रहा। $233.2 केल्विन सर। 233.2 केल्विन। चलो उसके बाद the turbine का efficiency is 90% which is again small upon big। यहाँ पर कौन स्मॉल है बेटा? पिंक is small and blue is big, so it is T6 minus T7 dash T6 minus T7 dash divided by T6 minus T7। क्लियर है? इससे आप लोगों को T7 डैश मिलेगा। बताओ कितना आया? सर मुझे ये सर T7 मुझे सर 221.3 मैं ये भी लिख देता हूँ। T7 का एक दूसरा वैल्यू है 221.32। आप एक बार क्रॉस चेक करो तो। यस सर। ठीक सर 221 सबको आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ तो ये आंसर नहीं है। ठीक है? Okay. Find T7 dash with the help of turbine efficiency। Okay, this is a simple question. Calculate the degree of freedom. Everyone calculate the degree of Find T7 dash। If degree of freedom is 1, that means let's give a single input motion. In this question number of things is 5, in this question number of things is 5, and in this question number of things is 4. And joint is, all joint is here binary joint. So in this question number of joint is 4. Sir 233.184. 4.
higher tier is nothing else. Higher tier is सबको ये है T7 डैश point और line contact. यहाँ पे 233 पॉइंट 184. कितने लोग को आया आंसर? सर आया 233.18. Now it is very clear. We got T2, T3, T3 dash, T4, T5, T5 dash, T6, T7, T7 dash. We got everything. Now, after getting all those things, we are supposed to find out the mass flow rate of air passing through the cabin. So it is already discussed that the system is of 20 TR. The system is of 20 TR, which is 70 kilowatts. Substituting 70 kilowatts is equal to m dot Cp delta T. हमें T7 का वैल्यू कितना है? 233.1 केल्विन, 18 केल्विन. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें मास फ्लो रेट आया कितना आ रहा है जरा बताओ बच्चों. So 1.07. क्या बात है, 1 सबको आंसर आ रहा है. 0799. 679. ठीक है, ठीक है, एक बार ये आ गया. फाइंड आउट पावर. पावर इज इक्वल्स टू m डॉट Cp T3 dash minus T2. 1.0799 into 1.01 into T3 dash का वैल्यू हमें मिला है 495 कितना है दोस्तों? 445.62 और T2 है 305. 445.62. In the module 1, 1.2 is completed. 1.1 is the difference between analytics of recording. 445.62 minus 230. 230 ही है ना? अरे 305 सॉरी. हाँ So T2 dash का वैल्यू, हाँ तो T2 dash का वैल्यू नहीं है ना, लेकिन एक्चुअली में T2 dash आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इसलिए 1 to 2 ही रहेगा. अरे एक ही चीज तो तुम लोग बार बार पूछोगे कि यार नहीं सर, मैं वो बता रहा हूँ सर भाई कि T2 आएगा ना उधर. T2 ही है वो. एक बार बता दिया तो रिपीट थोड़ी ना, वो गलती थोड़ी सर ना उधर है. डैश लिखा था इसलिए. ओके सर. वो तो लिखा ही रहेगा ना. तो पीपीटी कल बनाया था, ओके सर. पीपीटी जनरल बनाया, सब क्वेश्चन के लिए बनाया. फाइंड आउट पावर. 153.38. Power required is 153.38 kilowatt. किलोवाट. So 70 divided by 153.38 kilowatts is the COP of this system. That is 0.4 कितना है? 0.45. बस हो गया, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए. क्लियर है? अब मैं आप लोगों के सामने और एक क्वेश्चन देता है, आप मेरे को बताना आप लोग सॉल्व कर सकता है क्या. उसके बाद अपन तुमको एक ही मिनट ना वेट करो. Everyone solve the first one. Photo will solve the rest. Or I will upload this part also. वेट करो क्वेश्चन तो. आपको खाली इतना ही रीड करना है. अच्छा, बूटस्ट्रैप दिया है, हमको आता है, समझे क्या? Yes, anyone? First question. How many degree of freedom? यस माय डियर फ्रेंड्स. हाँ सर. Anyone? क्या बोलेगा? बूटस्ट्रैप दिया, हमको आता है, हमारे सर ने सिखाया है. First one. क्लियर? हाँ सर. तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. अगला क्वेश्चन हमारा होमवर्क है. ये आपके जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके असाइनमेंट में से ही दे रहा हूँ. यही आपका फर्स्ट असाइनमेंट मैंने अपलोड किया क्लासरूम में, आपने देखा होगा. देखा है? हाँ सर. हाँ, उसी के क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ. वही आपको लिखना है, 28 फरवरी तक जमा करना है. तो पहला वाला आपने सॉल्व किया, दूसरा आप सॉल्व कर लोगे. सेम पूरा प्रोसेस है. करेंगे आप लोग? Yes, sir. चलो, दैट्स ऑल फॉर द डे. आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. अरे कोई डाउट नहीं? अरे वो तो समझ में नहीं आया. ये देखो बच्चों, ध्यान से सुनना आप लोग. इस क्वेश्चन में भी क्या बोला है? इस क्वेश्चन में सीधा बोल दिया है अज्यूम नो रैमिंग. अज्यूम नो रैमिंग का मतलब क्या है? ना सब 1 P1 से P2 2 नहीं है, रहेगा. ना 1 से 2 डैश है. सीधा 1 हमारा
एम्बिएंट है, उसके बाद सीधा वो कंप्रेसर में चला गया, कंप्रेसर का एग्जिट प्रेशर यहाँ पे आएगा T2, ठीक है, T2 P2, और कंप्रेसर की सर, वो एफिशिएंसी दी होगी, उससे हमें T2 डायरेक्ट मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? यस तो सर। सर वो डायरेक्ट P1 बाय P3 होएगा ना? बेटा ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसके ऊपर कैबिन प्रेशर, क्लियर, उसके बाद मेन कंप्रेसर, उसके बाद सेकेंडरी कंप्रेसर, ये दोनों चलेगा, ये दोनों नहीं है, समझे? Yes, sir. ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थोड़ा ऊपर कैबिन प्रेशर के ऊपर मेन कंप्रेशन का प्रेशर, उसके बाद सेकेंडरी कंप्रेसर का प्रेशर। क्लियर है? 4 ही लाइन है, पिछले क्वेश्चन में 5 लाइन थी, बुक के अंदर 6 लाइन है। आई बात समझ? हाँ सर। यस सर। तो मैं कहाँ से सब बताता हूँ, ये मेरे को थर्मोडायनेमिक्स से मालूम पड़ता है, ठीक है। अपने को कुछ याद नहीं करना है, अपन याद करेंगे तो लटक जाएंगे, अपने को चीजें नॉर्मल लाइफ की तरह याद रहनी चाहिए, हमें कोई चीज रट्टा नहीं मारनी है, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें खाली क्लियर रखना है कि कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाने सीख गए, वैसे इसको चलाने सीखना है। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड? यस सर। ठीक है, मैं आपको Yes, ये जो sir. आज जो आपने काम किया है, मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, उसमें से देख के आप अपने नोटबुक में पहला क्वेश्चन कॉपी करोगे, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इज इट क्लियर? यस सर। That's all for the day. Thank you. Thanks for joining. थैंक यू सर। Take care. बाय Thank you, सर। sir. Bye, sir. बाय सर। Not a 5. So the number of link is 4. And similarly, इसको काम नहीं करो, pair कितने होंगे? So उसमें से ले लो। ये 2, इसमें है 4, हाँ। So pair is also 4. Then you substitute here. सर मैं थोड़ा 3 to 9, 9 minus 8. Degree of freedom is 1. 1 means it's giving us singular is good to, sir. Okay?